पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैं लिख रहा हूं ऑन टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑन टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, राइट। क्वेश्चन को समझना चाहो तो मैं समझा दे रहा हूं। लेट अस सपोज हियर इज ग्राउंड लेवल एंड दिस इज a point which is at a distance of 100 meter from the ground, right। यहां से एक स्टोन को गिराया गया है, इट मींस दैट इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। लेट अस सपोज t इक्वल टू 2 सेकंड। आपका ऑब्जेक्ट यहां आ गया है। द क्वेश्चन इज दिस, एट दिस वेरी टाइम what will be its velocity, right। And second question is what amount of distance will be covered by the object, means what will be value of s, right। Now see here, first of all we have taken downward direction positive, here u will be 0, we have to find s, we have to find t 2 seconds, and acceleration will be equal to 9.8, which will be positive or negative? Positive, very good. Plus 9.8 meter per second square, right। We want to find v, we should use which equation? First, on using equation v equals u plus 80, u is your 0, a is your 9.8 plus 9.8 into t, t is your 2, 0 plus how much? 19.6, which will be equal to 19.6 meter per second. Babu, your object is in motion in downward direction. From question or from solution, what we are saying, कि after 2 seconds body will acquire this velocity, your velocity is positive। अब मुझे यह बताओ, तुमने इस डायरेक्शन को लिया है पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो वेलोसिटी होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, एंड वी आर गेटिंग पॉजिटिव वेलोसिटी, नो डाउट। आवर सॉल्यूशन इज राइट। नाउ कम ओवर फॉर s, ऑन यूजिंग s equal to plus half at, right। On using s equal to ut plus half at square, u is no 0, right। Then after this half into a plus 9.8 into t square 2 to the power 2, which will be equal to half into 9.8 into 2 to the 4, which is your 19.6, right। Means distance covered by the object or displacement suffered by the object is 19.6 meter। You tell me, object मेरा इधर मूव कर रहा है, we have taken downward direction positive, so s should be positive or not? Yes sir, and we are getting positive, no problem, right। अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। अभी तक आपका कॉन्सेप्ट यह कहता था कि we will take that way direction positive in which our object is in motion। Very good। No pen yes, किसमें जा लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट और इसी चलते हमने उस प्रॉब्लम में डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, बट हियर वी विल टेक अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। मेरी इच्छा मैं इधर ले लूं, मैं अपने मन का राजा हूं, राइट। लेट अस सपोज आप अपने मन के राजा हैं, सर मेरी इच्छा मैं इधर लूंगा, चलिए ठीक है। ऑन टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑन टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 0। पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं। we are not knowing, we have to find
Yes. V we have to find. ऊपर जा रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी नजदीक होगा। जिससे स्टार्ट होता है उसको दिखाना है। जहां से गिरना शुरू हुआ V S इधर ही V not knowing S we have to find T 2 seconds A 9.8. Your acceleration is in downward direction, but we have taken upward direction positive. So A will be with minus sign. Or not? Now we want to find A. Now we want to find V. So we will use equation V equal to U plus AT. V equal to U plus AT. See here. V equal to U plus AT, your U is 0, plus A is your minus 9.8, into T is 2 seconds, which is equal to 0 minus 19.6, which is equal to minus 19.6. It means that after 2 seconds, velocity acquired by the body will be 19.6 meter per second. Right? अब मुझे यह बता दो योर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बट वी हैव टेकन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव इसको हमने पॉजिटिव लिया है और बॉडी इज इन मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव इसका मतलब वेलोसिटी इतना होगा एंड डायरेक्शन शुड बी विद माइनस साइन बात हो रहा है अपने आप आगे भाई हमने ऊपर पॉजिटिव लिया है एंड बॉडी इज इन मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो ये वाला जब ये वाला पॉजिटिव लिया ये वाला दिस शुड बी नेगेटिव और नॉट दिस शुड बी नेगेटिव which we are getting here, right? It means that we can say कि here we have taken upward direction positive and we are getting final velocity as minus 19.6. It means that after 2 seconds, velocity acquired by the body will be 19.6 meter per second in downward direction, right? For displacement. Use S equal to U plus half AT square, which will be equal to U. U is 0, then 0 into 0 plus half minus 9.8 into T square 2 to the power 2. 2 to cancel हो जाएगा, एक 2 बचेगा minus 19.6 meter. Displacement suffered by the body is 19 magnitude of displacement. Magnitude of displacement suffered by the body is 19.6 meter per second. But this very minus is showing direction which is along this direction. Because we have taken this direction positive, so this direction will be positive. यहाँ minus आ रहा है. It means that displacement suffered by the body is in this direction. Right? Any problem for anyone? No sir. No? No sir. नहीं ना? No sir. Do you want to solve more questions? Yes sir. Okay. An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter and rises to a height of 10 meter. Right? एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया with what velocity that is not mentioned. But question is an object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter means 10 meter पर जाकर के उसकी velocity 0 हो गई है क्योंकि उतना तक राइज करता है means you can say final velocity is given. Yes. Calculate number 1 the velocity with which the object was thrown upwards. The velocity किस velocity से फेंका गया था? U निकालना है. The velocity with which object was thrown upwards.
किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया था। नंबर सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट to reach the highest point। बुक का सॉल्यूशन कोई नहीं देखेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। गलती होगी आपको फांसी नहीं। पार्ट्स एक ग्राउंड लेवल है, सपोज है योर ग्राउंड लेवल। यहां से एक ऑब्जेक्ट को समथिंग वेलोसिटी से फेंक दिया गया है एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ या 10 मीटर के हाइट तक जाता है। दिस वेरी डिस्टेंस इज 10 मीटर, राइट? दिस वेरी डिस्टेंस इज 10 मीटर, यहां तक जाता है। जब यहां तक जाता है, इट मीन दैट एट दिस वेरी पोजीशन वेलोसिटी बिकम्स 0 or not? It means that final velocity will be 0, right? And यहां तक जाता है 10 मीटर means it is given that s equal to 10 meter, right? Question is calculate the velocity with which it was thrown, किस velocity से फेंका गया था, and second the time taken by the object to reach the highest point. Now you tell which direction you want to get positive, upward। मैं downward वाला ले लूं, हैं? मैं तुम लोग अपवर्ड लेकर चले हो, मैं डाउनवर्ड लेकर चलता हूं। ऑन टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, then u will be, we are not knowing, v 0, no need of plus and minus। s we have taken downward direction positive but motion has taken place in upward direction, so अगर इसको पॉजिटिव लिया क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इट मींस दैट दिस 10 मीटर शुड बी t। we have to find a, we have taken downward direction positive and acceleration is always in downward direction। why? because इस पर जो फोर्स लगेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स will act always in downward direction, so acceleration produced will be also in downward direction। ये जो होगा मेरा होगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नॉट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंका गया था। वी वांट टू फाइंड u। कौन सा इक्वेशन यूज करें, देखोगे ध्यान से। v पहला था v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हम एक बात ध्यान से देखना, हर एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं, 3 नोन होते हैं, फोर्थ वन हम लोग फाइंड आउट कर जाते हैं। व्हेन यू विल यूज इक्वेशन नंबर 1, यू आर नोइंग v, यू हैव टू फाइंड u, यू आर नोइंग a बट यू आर नॉट नोइंग t। इसमें 2 वेरिएबल है जो कि जिसका हम लोग नहीं जान रहे हैं, सो वी कांट यूज दिस इक्वेशन। इस पर आ जाओ, u पता करना है, s इज गिवन, फिर t पता नहीं, 2 अननोन हो गया, नहीं पता कर सकते। इससे आ जाओ, वी आर नोइंग v, you we have to find, a is given, s is also given, we will use third equation। v is your 0 to the power 2, laddu to the power 2, laddu into laddu बड़ा लड्डू है ना, e square plus 2 into a, 9.8 into s, 10 no minus 10, right? Then 0 equal to u square, 9.8 into 2, 19.6 into 10, 196 plus or minus, इसको इधर ले आओ, will be equal to 14। it means that u will be 14। कुछ गलती उलती नहीं ना किए हो, हाँ? Your u square is 14। अब कह देंगे इससे ये तो प्लस आ गया। We have taken downward direction positive and initial velocity is in upward direction, so it should be negative।
इट शुड बी नेगेटिव, लेकिन सर आपका तो पॉजिटिव आ गया, राइट राइट। कहोगे क्यों सर? ऑलवेज याद रखना, यू आर राइटिंग t was equal to 196 means there is a number whose square is 196। 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 196 माइनस 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 196 दोनों हो सकता है। हाँ, तब कह देंगे सर कौन सा लें, कौन सा लें? देयर इज ए प्रॉब्लम, कौन सा लें? कौन सा लें? तो अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये दिमाग लगा लेना कि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, राइट, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो वी विल टेक माइनस, राइट। यहाँ पर लिख देना पॉजिटिव कैन नॉट बी टेकन, सो यू विल बी इक्वल टू -14। सही सही बोलो। दूसरा एक तरीका और इसमें लाऊंगा, अभी रुक जाओ, देखता हूं आता है तरीका करेंगे। Now come over question number 2, time taken by the object to reach the highest point, we have to find t। कौन सा यूज कर लें? फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस at, v जो 0, u माइनस 14 प्लस a 9.5 प्लस और माइनस प्लस 9.8 इंटू t, इसको इधर ले आओ, 14 इक्वल टू 9.8 t, so t will be equal to 14 by 9.8। कैंसिल करोगे कुछ आएगा जो है, कितना आएगा बाबू? 1.43, राइट, 1.43 सेकेंड्स। अब यहाँ पर ये थोड़ी देर के सोचेंगे कि सर हम लोग अभी जो है थोड़े उधेड़ बुन में हैं कि व्हाट शुड बी, यहाँ क्या होना चाहिए? सही, यहाँ क्या होना चाहिए, राइट। ये तो इमेजिन, अब चलो मैं ये लेकर चल रहा हूं, क्या लें? इमेजिन करो कि t इक्वल टू 2 सेकंड इज गिवन, इमेजिन करो कि t इक्वल टू 2 सेकंड इज गिवन, राइट, सही। अब चलो t इक्वल टू 2 सेकंड दिया हुआ है, तो अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग यूज करके ये निकाल सकते हैं, बोलो। v इक्वल टू u प्लस at, v इज योर 0, you are not knowing, a is your प्लस और माइनस 9.8 into t, t जो 2 seconds, so 0 equal to u plus 19.6, इसको इधर ले आओ, u will be अरे सॉरी बाबू, तुम लोग ये सर 2 सेकंड, t दिस मच ना, t इतना ना है, तो फिर क्यों 2 सेकंड बोल 1.43 और 1.43 को 9.7 इंटू से करोगे तो कितना होगा? 9.8 को 1.43 से इंटू कर लो, 14 will be equal to 14, will be equal to 14। अब जरा सा ध्यान से देखो, इसको इधर ले आओ, कितना आया? 14। क्यों? 14 को 9.8 से देखो ना, 14 को 9.8 से इंटू किए थे तो आया था 1.48। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, then 14 will be equal to 1.4 into 9.8 or not? 9.8 को 1.43 से इंटू करोगे तो 14 होगा नहीं? हाँ, here we will get 14, इसको इधर ले आओ, so u will be equal to -14, u मेरा -14 होना सही। ये एक पर्टिकुलर ऐसा कंडीशन बन जा रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ जा रहा है, इसलिए हम लोग दुखचुक में हो गए कि प्लस और माइनस, राइट, समझ रहे हैं ना? बट योर आंसर इज, तो थोड़ा सा जो है हम लोग पहले इसी को सॉल्व कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा तुरंत दिमाग लगा लेना, बॉडी ऊपर गया था, हमने इसको लिया है, हम लोग वी विल टेक माइनस साइन, राइट। टेल मी, ledge and drops to the ground, एक कार जो है मान के चलिए कि जो है कोई ओवर ब्रिज है, ऊपर ब्रिज से ऊपर से नीचे गिर गया, कार को क्यों गिरा? एक स्टोन को गिरा,
नहीं सर कारण ठीक है मजा आएगी हाँ? बड़ा चीज हाँ हाँ सर सही है तुम्ही को गिरा नहीं A car falls off a ledge and drops to the ground. Drops to the ground in 0.5 second. Right, 0.5 second में गिर गया वो. Let you have to take g equal to 10 meter per second square. यहाँ पर दिया गया है कि आप g equal to 10 ही लीजिए. यस सर Right. Calculate. Number one. What is its speed on striking the ground? What is its speed on striking the ground? ग्राउंड पर स्ट्राइक करने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? सेकेंड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड? व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड? मुझे बता दो, जिस समय गिरना शुरू होगा उस समय स्पीड कितनी होगी? जीरो. जैसे जैसे नीचे आते जा रहा होगा स्पीड बढ़ते जा रही होगी, नीचे पर हिट करने पर एकदम मैक्सिमम स्पीड होगी. पूछा जा रहा है, नो डाउट स्पीड इज चेंजिंग, बट व्हाट विल बी एवरेज स्पीड थ्रू आउट द मोशन? इज द लेस फ्रॉम द ग्राउंड